Okay, we were continuing with the heating effect of current. उससे पहले मेजर टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं. We have seen drift velocity and current density, mobility of charges, and your Ohm's law, series and parallel circuits, Wheatstone based and meter based potentiometer, and also the series and parallel combination of cells. These are the topics done already. Now heating effect was going on in the previous lecture. उसमें भी हमने देखा था Joule's law of heating is given by I square RT, and उसको Ohm's law से we can change this formula or we can bring this formula from this. Unit of heat is joules, and heat is at the cost of loss of potential energy of the charges. All right, and power is heat upon time. So time से divide कर देंगे. T will get cancelled in all the three terms. We'll get the relation for power, which is V square by R, and which is also equal to I square by R, which is also equal to VI. Power transmission में VI वाला formula use होता है, and these formulas depends upon the type of the circuit. If current in the branches are same, then we can use it. This resistance having more resistance having more value of R will produce more power in that particular branch in which current is same. Otherwise, generally, all the devices are used in parallel, whether in domestic supply or whether inside the electronic circuits. So they get the full voltage, they get the voltage V. डोमेस्टिक सप्लाई में V सबको 220 वोल्ट मिलता है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा होगी. AC में भी ओम्स लॉ लगता है ना. AC में भी when we study the AC circuits, AC supply, वहां भी ओम्स लॉ यूज करेंगे हम, है ना. इट इज वैलिड इन द AC चैप्टर आल्सो, हीटिंग इफेक्ट का ये. ठीक है. ऑलराइट, तो less resistance, more power provided, V is same, which is there in the domestic connections and office and factories, सब जगह. All the devices are meant for 220 volt. They are manufactured according to this 220 volt. है ना. Indian supply is 220 volt. Different countries, they have the different supply. तो ये बल्ब का हो गया था क्वेश्चन है ना. बल्ब का रेटिंग दिया था, तो रेजिस्टेंस निकालना था. रेजिस्टेंस हमने निकाली यहाँ पे R100 कर लो. आई थिंक आई डिड इट 60. करेक्शन कर लो. R100 रेजिस्टेंस ऑफ 100, सॉरी P100. तो 100 वाट का नहीं, यहाँ पे नहीं. आई थिंक सब मेरी यहाँ पे शायद सब मेरे करेक्शन है दिया. तो ये 100 वाट का पावर का फार्मूला, मतलब पावर का फार्मूला यूज करके 100 वाट का रेजिस्टेंस निकाल लिया, which is coming 484, and 60 का is coming more. And देखो, less power, more resistance, less power है. Less resistance, more power, 100 है. इनवर्स रेशियो है. एंड फिर दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. फिर उसका सीरीज में कनेक्ट करने का फिर से पावर निकाली. इट इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग, एंड वन हु इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस इज गिविंग मोर पावर. पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा. करंट निकाल लिया यहाँ से, इससे फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, है ना. तो देन वी विल गेट इट. पावर ऑफ द 100 watt bulb will be less, है ना, as compared to that of 60 watt, because सीरीज में क्या हो जाएगा कि दोनों का करंट सेम हो जाएगा. जस्ट मिनट है, इसका करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं. (0.17) current is coming. 0.17. ठीक है. तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो ये 14, ये 23, 60 वाट का. बट दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर लेस पावर देन देयर एक्चुअल.
60 वाट को जब पैरेलल पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे तो 60 वाट प्रोड्यूस करेगा और ये 100 प्रोड्यूस करेगा, बट व्हेन वी आर कनेक्टेड इन सीरीज तो 100 वाट वाला 14 प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोज टू 14 एंड दिस इज क्लोज टू 23. तो we can't connect them in the series because we'll get much lower power than the actual power. In other words, they will not work in series and parallel में connection होते हैं. That's how the wiring is done in the domestic supply and other official and factories में. This question is there, the homework में था ये. देखो 220 ये bulb is made here in India and used in US. US में इतनी supply होती, वहाँ पे 110 है. तो कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा? सपोज यू कैरी दिस बल्ब टू द यूएस एंड यूज इट देयर, पावर प्रोड्यूस विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला. आर रिमेन्स सेम, आर रिमेन्स सेम, है ना. तो डिवाइड करेंगे P1 वाले फार्मूले में, आर तो कैंसिल हो जाएगा एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P इज इक्वल टू, ओके फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर. तो आर रिमेन्स सेम. बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, वेदर यू यूज इन इंडिया or take it somewhere, because factory has made it like that, उसकी जो filament की length and area of cross section and resistivity होगी, that resistance will be there whether you don't use it even. ठीक है. तो R will get cancelled when we divide it. तो बाकी value put कर दो. Initial power was 100 when voltage was 220 volt. हमें power निकालना है when voltage is 110. तो ये 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25, P2 विल बी 25. डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, वोल्टेज बिकमिंग हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर, ये वोल्टेज हाफ हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, पावर विल बी 1/4. पहले कितनी थी? 100, तो 1/4 भी 25. तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको. अगर 440 पे यूज किया तो power will be 4 times. 440 means voltage becoming double का square, तो 4 times. Power will be 4 times. तो 100 का 400 हो जाएगा. But it will not survive then. Its filament will be severely damaged. Break हो जाएगा इसका filament. और if it is LED bulb, तो उसका due to overheating, it will lose its property and will get damaged. Clear so far? No problem? Are you available? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक Sir, you are not audible.
Can you hear me now? Yes, sir. Okay, let me bring back the screen. Just it has gone. Just wait for 1 minute. Okay. Piyush, calmly, please make me host. Are you there? Okay. ठीक है. All right. Okay. Can you see it? So what is the answer coming for this question? Hmm. Can you solve it quickly and tell me the answer fast? देखो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है फास्ट. आगे आंसर. तो जब इसको पहले तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. R is equal to V square by P. 200 into 200 by 100. तो ये आपका आ गया 400 है ना. इसको दो इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो 200 ईच. उनको पैरेलल में लगा देंगे तो 100. तो P is equal to P dash is equal to V square by R dash. तो रेजिस्टेंस कितना था 400 से 1/4 हो गया ना. तो पावर विल बी 4 times. Power will become 4 times. Can you see it? पहले क्या किया रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने. फिर उसके दो दो पार्ट किए 100 200 200 हो जाएंगे इक्वल पार्ट. उनको पैरेलल लगाया तो 100 आ जाएगा. नाउ P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R डैश RP. तो 200 into 200 अपॉन 100 400 आ गया. रेजिस्टेंस 1/4 हो गया तो पावर 4 times. तो दिस इज आस्क्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन. पहले काफी आता रहता था ऐसा. इसमें कभी ऐसे पूछ लेंगे ओनली वन पार्ट इज यूज्ड. वन पार्ट इज यूज्ड तो रेजिस्टेंस विल बी 200. यहाँ पे 200 आ जाएगा. 200 200 गेट विल गेट कैंसल तो 200 बचेगा. 3 पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट में R/3 हो जाएगा ईच पार्ट का. तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R/9. तो 9 टाइम्स हो जाएगी पावर. 9 ऊपर आ जाएगा. 9 टाइम्स मीन 900 वाट हो जाएगा. ठीक है. अगर 3 पार्ट करके 2 को पैरेलल में लगा दिया 1 इज केप्ट असाइड. 2 को यूज किया तो उसका नेट निकालना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस इट गेट्स चेंज है ना. So this is comparatively easy questions, can be done easily without any problem.
Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But this is important question. Anytime it can be asked. This is another important question for boards and competitive examination both. तो दिया है, refer the diagram. Power dissipated in 4 ohm resistance is 100. इसमें 100 है. Calculate the heat dissipated in 3 ohm. इसमें 100 watt power produce हो रही है. तो इसमें कितनी होगी? That's what is asked. It is very important again. So can you try and tell me the answer fast? Fast solving is also the key for competitive examination. I'm telling you. बोर्ड में भी फास्ट ही सॉल्व करना है हमें. एवरी सेकेंड सेव्ड इज एवरी सेकेंड अर्न. जितना टाइम बचा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी वैल्यूएबल. तो मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट क्विकली. पावर दिया है और रेजिस्टेंस दिया है. P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. यहाँ का V मिल जाएगा, और वी कैन यूज इट. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. I निकाल सकते हैं यहाँ का. जो I मिल गया वो I आगे भी जाएगा. तो इस यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मिल जाएगा. V विल बी I इंटू R1 प्लस R2, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक का V मिल गया. ऊपर वाली ब्रांच में जो V रहेगा पैरेलल में है, नीचे वाली ब्रांच में V रहेगा. तो नीचे वाली ब्रांच का V मिल गया, तो नीचे वाली ब्रांच का पावर मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R. इतनी इसके लिए V डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम. तुम बोलो सर ये क्यों नहीं यूज कर सकते? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. इतना वोल्टेज मिलेगा केवल, क्योंकि इसकी पावर दी है तो इसका ही वोल्टेज मिलेगा. फिर उससे करंट निकालना पड़ेगा हमें, तब पूरे का वोल्टेज मिलेगा हमें, पूरा रेजिस्टेंस. तो बी केयरफुल. इतना वोल्टेज निकाल के डोंट अप्लाई हियर. ये पूरा वोल्टेज नहीं रहेगा. इसका अगर वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया तो इतना वोल्टेज मिलेगा, उससे करंट निकालना पड़ेगा. तो सीधे करंट का ही फॉर्मूला लगाओ. पावर दिया है I स्क्वायर R. करंट जो इसमें मिलेगा वो आगे भी जाएगा, सीरीज में है. तो दैट्स हाउ यू हैव टू डील इट. उसको P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. इस R ओम के लिए लगाया, उसी की हमें वैल्यूज दी है. करंट 5 एम्पियर आ गया. तो फिर अपर ब्रांच के लिए V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2. तो यहाँ से पूरी अपर ब्रांच का वोल्टेज मिल जाएगा 30. तो ये 30 वोल्ट है. नीचे भी 30 वोल्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक पैरेलल में. तो दिस वोल्टेज इज आल्सो वैलिड फॉर द लोअर ब्रांच सिंस दे आर इन पैरेलल. तो एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हमने इसका, है ना. और अभी उसके बाद अगर तुम्हें वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस है, तो पावर निकाल सकते नीचे वाले उसमें. अच्छा, पावर निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट मिल जाएगा. ठीक है. तो H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो पावर V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम. तो वोल्टेज जो ऊपर का निकाला वो यहाँ कर लिया. डिवाइड बाई R इज 3 ओम इंटू 10. 3000 joules it is coming. ठीक है. इसमें कुछ पूछना है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई नीट एंड बोर्ड. सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था? यहाँ पे वाट की जगह पता क्या दे दिया था? दिस वाज गिवन 100 कैलोरी पर सेकेंड. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कन्वर्जन. कैलोरी का कन्वर्ट नहीं करना है. यूज इट एज इट इज. तो लास्ट में तुम्हारा कैलोरी आंसर आ जाएगा. don't
waste your time in calculating calorie into joule, then calculation will be very lengthy. So without converting, because it is in the same proportion, तो कैलोरी में आंसर आ जाएगा. तो यू कैन डू इट. उसको लिखो कैलोरी पर सेकंड करके सॉल्व करके देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना. तो answer will be, you don't have to change anything. Answer end result will be coming in calorie. That's all. लॉजिकली तो चेंज करना चाहिए ना पावर, बट हमें लास्ट में यहाँ पे निकालना है ना इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो जो जो कन्वर्जन कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा बाद में. All right, moving on to the next one. Noted. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो ये हो गया आपका. Okay, this one is comparatively easy. इसको नोट कर लो होमवर्क में, कल डिस्कस कर सकते हैं या टाइम बचा तो आज करेंगे लास्ट में. वही जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वी डबल किया तो क्या होगा, वी हाफ किया तो क्या होगा. तो डिपेंड्स अपॉन द हाउ द कनेक्शंस आर देयर, उस पर डिपेंड करेंगे आंसर्स है ना. सीरीज है कि पैरेलल है, जस्ट गो थ्रू द फुल क्वेश्चन, यू विल गेट द all the information given in this and you can just have the solve it yourself. Okay, noted. Let's see next one. ठीक है. तो ओके, देखो एक और क्वेश्चन है. Refer diagram and find relation between R and R, internal resistance and external resistance, so that maximum power is produced in the external resistance R. R external resistance है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है. इसमें मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर. फॉर मैक्सिमम पावर इन द R, व्हाट टू डू, कैसे करेंगे बोलो. जस्ट कैन समबडी टेल मी हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. बोलो जल्दी से. मैक्सिमम पावर के लिए व्हाट इज टू बी डन. पावर का फार्मूला लिख लेंगे पहले है ना. क्या होगा पावर का फार्मूला बोलो. करंट निकाल लेते पहले है ना. I is equal to E नेट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. तो नेट रेजिस्टेंस कितने है? R प्लस R. देयरफॉर पावर I स्क्वायर. किसमें पावर निकालनी है? इसमें निकालनी, पूरे सर्किट में नहीं निकालनी. पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है ना. तो I स्क्वायर R जिसमें निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, नॉट फॉर द फुल सर्किट. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में, therefore P is equal to E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R. ठीक है. तो E स्क्वायर
इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे तो पावर विल बी 2 इंटू आर। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? तो ये हमने पावर का फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर, आर को पहले लिख दिया, आर प्लस आर को बाद में लिखा। व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करें इसका, कैसे पावर मैक्सिमम निकालें? एनीबॉडी? मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें फिजिक्स में? what is to be done in physics or in math to get the maximum value for certain function, certain physical quantity? बोलो जल्दी से। सीखा था हमने मैथ्स में मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, तो क्या करें बोलो, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? सेकंड डेरिवेटिव पहले सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव करो ना, फिजिक्स में सेकंड करने की जरूरत ही नहीं करती। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करके, इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, यू डोंट डू इन क्रॉस चेक। तो फर्स्ट पी का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ई के रिस्पेक्ट में करें कि कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में करें कि स्मॉल आर के रिस्पेक्ट? हु इज वेरिएबल हियर? ई तो कांस्टेंट है, इंटरनेशनल भी कांस्टेंट है, आर इज वेरिएबल। आर की वैल्यू हमें पता करना है, कितना लगाएं कि ज्यादा पावर प्रोड्यूस है। सिंस आर इज वेरिएबल, r can be varied, r can be changed, r is variable। r के रिस्पेक्ट में करेंगे, बताओ, ये तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया 1, सेकंड टर्म का r प्लस आर, ये आ गया, इंटू इंटू ये तो बाहर है ना, इंटू नहीं प्लस आता है बीच में, एक बार एक का करना है, दूसरे को छोड़ना है। अभी पहले का कर दिया तो पहले को भी छोड़ दो, इसका कर लो। इसका कितना आएगा, -2 आगे आ जाएगा, r प्लस आर की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम dp बाई डी आर इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार। देखो इसमें से कॉमन ले लो बाहर, लेफ्ट साइड में 0 है तो कॉमन टर्म्स तो छूट जाएंगे, ये स्क्वायर है, और ये बाहर तुमने क्या निकाला, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर -2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस -2r। ठीक है, और नीचे इसमें माइनस पावर बचेगी तो r प्लस आर, ये ऐसे बचेगा। देखो, तो इसके बाद ये 0 हो गया, ये तो 0 है नहीं, ये वाला टर्म 0 हो सकता है, या ये पूरा टर्म 1 के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, एलसीएम भी ले लेते हैं अभी, ये तो छूट जाएंगे, इसका एलसीएम ले लो, r प्लस आर, ये r प्लस आर -2r, तभी ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी नीचे वाला भी गया, तो 0, ये बचा तुम्हारा r माइनस आर, देयरफॉर r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो ये आंसर आ गया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मोर देन वन रेजिस्टेंस होगी, मोर देन वन बैटरी होगी, तब कैसे लिखेंगे, देयरफॉर नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें मिल गया फार्मूला टू हैव द मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मोर देन वन बैटरी होगी तो नेट निकालना पड़ेगा ना।
गेटिंग इट? सिंगल सिंगल है तो प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा, हाउ मच इज द, ओके, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम पावर, देन ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ज्यादा पूछते ही है, बट अपने बोर्ड में पूछ सकते हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। एज ए क्वेश्चन मैंने दिया, तो मैक्सिमम पावर होगी कितनी फिर? देयरफॉर मैक्सिमम पावर P max will be E स्क्वायर का निकाला पावर का फॉर्मूला ये है, ये वाला E स्क्वायर R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। आर की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स में, या फिर दोनों तो इक्वल है, किसी के टर्म में भी कन्वर्ट कर लो। तो नीचे कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, 4R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, और एक आर ये बचा है ऊपर वाला। तो पी मैक्स विल बी, हाउ मच इट इज कमिंग, ई स्क्वायर अपॉन नीचे 4R, एक आर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये याद रख लो, है ना? इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। डन? समझ में आ गया? बोलो, नोट कर लो इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमा मिनिमा वाज द की हियर। Okay, we can do one more question and then we'll. This chapter is almost over. Tomorrow we are going to start the fourth chapter, magnetic effects of the current. Current से कैसे magnetism बनाते हैं, and there is widespread uses in our day-to-day life. Without that effect, without that knowledge, we could have not started that self-starting जो करते हैं ना गाड़ी में, even two wheelers वगैरह, पहले तो किक स्टार्ट था, अभी just we crank it and vehicle gets started, even two wheelers also nowadays. So we send the current in the starter motor and it starts rotating and produce the torque and rotates the engine, and then it gets started and the starter motor comes back to its initial position. तो डे टू डे लाइफ में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम बेचते हैं, और उसमें टॉर्क लगता है कॉइल में, इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ टॉर्क इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड स्टार्ट्स द इंजन। So that's very much used as wiper of the car and auto while starting fan is rotating. These are the examples of that magnetic effect of current. मिक्सर ग्राइंडर, ये सब टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसमें करंट भेजते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने, टॉर्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू कितना था, टॉर्क अंदर डायपोल, याद है तुम्हें? अच्छा, इसमें ये दो टॉपिक रह गए अभी। ओके, जैसे सपोज, लेट अस सी, सपोज ये क्वेश्चन है, देखो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक कि बैटरी है एक 8 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड उसका इज बीइंग चार्ज, है ना? हम लोग चार्ज करते हैं सेल फोन को अपने डेली, तो उसका क्वेश्चन है ये, बैटरी इतने वोल्ट की है, रेजिस्टेंस इतना है, और
120 वोल्ट डीसी सप्लाई से उसको चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअल में वो 100 डीसी अपने जो है 220 वोल्ट एसी होता है, फिर चार्जर से वो डिक्रीज होके आता है। इतना नहीं रहता, कम रहता है काफी। इट इज फास्ट चार्जिंग एनीवे। अच्छा नहीं, बीच में ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया है, दैट विल ड्रॉप द वोल्टेज देयर, मच ऑफ द वोल्टेज। ओके, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस इज देयर प्लेस्ड 15.5 ohm. What is the terminal voltage of battery? टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, वी निकालना है चार्जिंग में। चार्जिंग में वी कितना होता है? ई प्लस आई आर बताया था मैंने, प्लस हो जाता है, लेकिन हमें करंट भी निकालना पड़ेगा पहले। करंट कैसे निकालेंगे? दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न द सर्किट। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट? वोल्टेज ड्रॉप करेगा बिकॉज वी हैव द 8 वोल्ट वोल्टेज बैटरी, you are charging with the 120, तो most of the voltage drop will take place here। बाकी बैटरी को ये 8 से थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी ओवरचार्ज, ओवरहीटेड इन फैक्ट, है ना। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? देखो, इसको थ्योरी बता देता हूँ अलग से, इसकी थ्योरी नहीं है बुक में। देखो ऐसा थोड़ा सा ऐसे सीख लेते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर चार्जिंग, और हेडिंग डालते हैं चार्जिंग ऑफ द सेल, ऐसे हेडिंग डाल देते हैं तुम्हारा कन्वीनियंस के लिए। Do we have the time or we have to just close? Charging of the cell. Charging of cell or battery दोनों। Battery is the combination of cells only. तो देखो मैंने ये जस्ट रफ सर्किट बना दिया है। ये बैटरी है अपनी। बैटरी चार्जिंग कंटिन्यूअसली, इट इज डेली प्रोसेस है। व्हेन मोबाइल को भी हम चार्ज करते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं तो वहां भी चार्ज होती रहती बैटरी। एक बार हमने चार्ज बैटरी फिट कर दी कार में या टू व्हीलर में, तो इट रन फॉर इयर्स टुगेदर, है ना। यू डोंट हैव टू वरी, एटलीस्ट 3 to 4 years, अप टू 3 years यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट चार्जिंग, है ना। लाइफ जनरली बैटरी की 3 years के आसपास रहती है, टू व्हीलर और कार। तो ऐसे फिटिंग है। तो ये बैटरी है, ये हायर वोल्टेज सोर्स है, इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे ना। चलो विल डू इट टुमारो, है ना। आई थिंक मैम हैज कम। मोहित सर, आर यू देयर? यस सर, यस सर। करना छोड़ना है इनको, छोड़ दूं या अभी? सर केमिस्ट्री क्लास है, सर केमिस्ट्री क्लास है। ओके, हाँ मैम ने ज्वाइन कर लिया क्या? वी आई नीड 3-4 minutes ओनली। Yes, sir. Yes, continue, ma'am. Continue, ma'am. Yet to join? Joining. ओके, तो देखो ये सर्किट बना लिया हमने ऐसा। हायर वोल्टेज का सोर्स प्लस प्लस आर टुगेदर। देखो यहाँ से हायर वोल्टेज सोर्स विल सेंड द करंट डाउन हियर, करंट विल बी जस्ट गोइंग लाइक दिस। तो बस ES इज द सोर्स वोल्टेज, है ना। EB इज द बैटरी वोल्टेज, ये R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, एंड RS इज द सीरीज रेजिस्टेंस। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, सेफ्टी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। It will decrease the current in the circuit, and hence voltage इसको इतना हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसको कम वोल्टेज मिलेगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो नेट ईएमएफ कितना है, किरचॉफ लॉ से देखो प्लस, ऐसे घूमो ऐसे आओ, तो ये ES इज पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हुए, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले, तो ये माइनस। देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, हायर वोल्टेज, और ये इसका माइनस, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहे, तो बोथ आर अपोजिंग टू ईच अदर। तो हायर EMF माइनस, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इधर करंट भेज रहा है और ये ऊपर भेजने की कोशिश कर रही है बैटरी, अपोजिंग है। तो हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सोर्स का रेजिस्टेंस जनरली नहीं देते, तो वो नहीं लेना है, फिर दिया होगा तो वो भी लेना पड़ता है, बट इट इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक। तो बस करंट मिल गया, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये निकालना था, V इज इक्वल टू चार्जिंग में मैंने देखा बताया कि बैटरी का EMF प्लस I इंटू R, तो I चाहिए था, I निकाल लिया। I निकालने के बाद एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स भी निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड, पावर हो गया। तो सोर्स कितना सप्लाई करेगा, VI,
तो V क्या है, सोर्स का EMF क्या है, ES है इंटू करंट। हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक ये है, देखिए करंट निकाल लिया हम लोगों ने I², दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, सीरीज ये वाला रेजिस्टेंस भी सर्किट के सीरीज में और R भी उसके सीरीज में हो गया, एक ही लूप है ना, ये सिंगल लूप है, तो ये आ गया। तो टोटल हीट प्रोड्यूस पर सेकंड इतनी आ जाएगी, तो पावर तो इतनी सप्लाई हुई, हीट इतनी प्रोड्यूस हुई, बाकी पावर कहाँ जाएगी, इट विल गोइंग इनटू द बैटरी एज ए केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड बाय द बैटरी, एनर्जी लॉस पर सेकंड इन द हीट, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैटरी चार्जिंग की केमिकल एनर्जी में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स हैं, जिसमें जो पूछा है वो निकाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है तो ये निकाल लो, दैट्स ऑल, बाकी ये दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लो तुम, इस टॉपिक का, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन 11th वाला, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, 11th वाला भी है, नेक्स्ट वाला भी है। ओके, तो 11th ले लिया, डन, मेक इट Yes, फास्ट। Sir, ma'am join. yes, ओके, Sir, तो ma'am ये join. 11th कंप्लीट कर सकते हैं, और ये भी है 15th भी है सेम टॉपिक का, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। टुमारो विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस एंड देन विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, एक और क्वेश्चन करेंगे, देन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। Children, if you all have taken kindly, if you all have taken kindly डन, form, इसका इसको नहीं लेना, ये तो नंबर नोट कर लो 15, दैट्स ऑल, और इसका भी नंबर, ओनली थिंग ये दिस यू हैव टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, दैट्स ऑल, इसका नंबर नोट कर लो। 11 and 15 questions. Won't be JEE classes. Tomorrow won't be JEE classes. Tomorrow is what? Tomorrow we have, tomorrow Saturday है क्या? Okay, we'll have JEE class. Monday we'll start the new chapter. Tomorrow Okay, JEE sir. class is there. Okay. Okay, sir. ठीक है, I didn't remember the day. Okay, yes, tomorrow sir, JEE class, tomorrow we'll same have JEE. timing. Yes, sir. Same Tomorrow timing. we'll have We'll JEE. finish that electrostatic chapter. Last 20 questions are remaining. We'll do it. Okay, thank you very much. I'm quitting. Just a minute. Okay, sir. Thank you.